सो लास्ट क्लास में हम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स देख रहे थे ना. Yes, sir. एक second. सो लास्ट क्लास में हम बेसिक थ्योरम्स तो किया था ना बेटा. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, वहां तक कर लिया ना. हाँ सर. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट थ्योरम इज समथिंग लाइक दिस. So if you have two triangles with bases along the same straight line. ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, assume that you have a straight line, something like this. So there are two triangles with bases on the same straight line. एक ट्रायंगल का मान लीजिए बेस ए बी है, एक ट्रायंगल का बेस मान लीजिए बी सी है. ओके, and assume that these two triangles have a common third vertex. मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रायंगल जो है ऐसा है. एक सेकंड. ठीक है, assume that you have some figure like this. So what is the figure saying? There are two triangles ABP. देखिए, triangle ABP and triangle BCP. So how do you describe these two triangles? These two triangles have their bases along the same straight line. yes or no? एक ही Yes, स्ट्रेट sir. लाइन के Yes, ऊपर sir. दोनों बेसिस है. ये दोनों बेसिस Yes, इक्वल sir. नहीं है. They don't have the same base, but they have bases along the same straight line. Okay, and they have Yes, a sir. common third vertex. yes or no? Yes, sir. So the theorem is like this: if two triangles have their bases along the same straight line, and have a common third vertex. Okay, common vertex, then their areas will be in the ratio of their bases. This is the theorem. इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP, दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज का जो रेशियो है दैट विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ द बेसिस. ऐसा होना चाहिए या नहीं आपके तरफ से? मतलब व्हाट डू यू थिंक? एंड Yes, sir. होना व्हाई डू यू चाहिए. थिंक दिस Yes, विल sir. हैपन? क्योंकि ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ दिख रहा है आपको कि दोनों ट्रायंगल्स का हाइट तो सेम है ना. हाँ सर, हाइट सेम है तो एरिया बोथ भी द ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट. सो एरिया तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ भी सेम है, हाइट भी सेम है. सो व्हाट इज द रेशियो? द रेशियो रेशियो शुड सेम बी होगा. द रेशियो ऑफ देयर बेसिस. क्लियर है? Yes, sir. सो ये थ्योरम भी नोट कर लीजिए. सो वंस वी कंप्लीट दिस थ्योरम, इस चैप्टर का बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो गया. ओके, नाउ सर इसके बाद क्या क्वेश्चन करेंगे? हाँ, आई विल गो इनटू द क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर. ओके, हाँ सर, हो गया.
So देखिए, So just a minute. first we'll start with easy questions. Okay. Yes, sir. Hmm? So done. So first question देखिए, ABCD is a quadrilateral and BD is one of its diagonals as shown in the figure. Okay. And as shown in the figure, you have two 90 degrees here. Okay. Show that ABCD is a parallelogram and find its area. So हाँ this is सर very easy. बहुत easy है ना. So यस in सर Yes, sir. quadrilateral ABCD, what is happening such that this will become a parallelogram? First is AB is equal to CD. ठीक है, one pair of opposite sides are equal. And second, AB is parallel to CD है ना. क्यों parallel है? क्योंकि क्योंकि इंटीरियर alternate interior ऑल्टरनेट angles are इंटीरियर equal. Okay. इक्वल Alternate interior angles are पैरेललोग्राम equal. Okay. So one pair of opposite sides are equal as well as parallel to each other. Hence, so one pair of opposite sides are parallel and equal. This implies ABCD is a parallelogram. Yes or no? Which implies ABCD is a parallelogram. Clear? So Yes, we sir. And what is the area of the parallelogram? Area का formula क्या है? Base into सर 12 height. BH. So 3 into 4 is equal to 12 centimeter square. Okay. Clear? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आगे जाएंगे. So just so यस सर डन ओके गुड. सो नेक्स्ट The क्वेश्चन. recording. हाँ ठीक है बेटा, दूसरे जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं. Okay, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए इस चैप्टर में what you have to look is you have to look for common basis and parallel lines. Yes or no? Because जो भी theorems इस चैप्टर में हम किए Yes, हैं, sir. all of them are based on common basis or basis along the same straight line between two pairs of parallel lines, so on. Clear है? So you have to search for them. So देखिए in the figure PQRS and PQRS and ABRS. Okay. PQRS and ABRS are parallelograms. देखिए PQRS and ABRS दो parallelograms है. Okay. And X is any point on side BR. Okay. डायग्राम दिख रहा है आपको सबको? यस सर yes, Yes, sir. Show that area of parallelogram PQRS is equal to area of parallelogram ABRS. First वाला तो straight forward है. Yes or no? yes, sir. Because Yes, sir. both Sir. of them are parallelograms on same base and between sir. same parallels. Okay. And next you have to show that Yes, sir. area of triangle AXA is equal to half of area of parallelogram PQRS. ये भी इजी है ये भी easy है ना? So first का हाफ होगा फिर इक्वल area of parallelogram PQRS is equal to area of parallelogram ABRS. ये तो डायरेक्ट है ना? आप रीजन क्या लिखिएगा? Since सेम बेस एंड सेम पैरेलल both Same Are base Both and are same on base same base and are both parallel. and in between same parallels. same parallels. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Next, अब if you take the triangle ASX, ASRB parallelogram
है ना, ASR भी पैरेललोग्राम है ना, एंड ट्रायंगल ASX आर ऑन सेम बेस, लिख सकता हूं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, यस और नो? Yes, देखिए sir. इस तरफ से देखिए, सी फ्रॉम दिस साइड, इस तरफ से देखा तो देखिए ये तो पैरेललोग्राम है, ये तो पैरेललोग्राम है ना, Yes, sir. so इस पैरेललोग्राम का Yes, sir. AS is base, AS is the base, and this parallelogram is in between these two parallels, yes or no? Now this Yes, sir. triangle is also on the same base and in between And these two same parallel. parallels. Yes, Yes. sir. Yes, sir. So what is the conclusion? Area of triangle ASX is equal to half of area of ASRB, yes or no? Yes, sir. Half होना चाहिए, Which is equal to PQRS. but ASRB is same as PQRS, which is equal to half of area of PQRS. Clear है? Yes or no? Yes, sir. हाँ सर, हो गया. हो गया? Okay, sir. Sir, वो triangle half of parallelogram कैसा आया? Because both are on the same base and in between same parallels है ना, वो तो थ्योरम है ना. अगर एक ट्रायंगल एंड एक पैरेललोग्राम, इफ बोथ आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम का. Yes, sir. याद है, इसीलिए आपको पैरेललोग्राम का एरिया BH है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ BH आया था ना. हाँ sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए. Yes, sir. Yes, sir. If EFGH respectively are midpoints of sides of a parallelogram ABCD, show that area of EFGH is half of area of ARCD, नहीं है ABCD है. ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है. क्लियर है? सो क्या बोल रहे हैं, एक पैरेललोग्राम है ABCD. ओके, लेट अस ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ABCD. ओके, लेट अस हैव ए पैरेललोग्राम ABCD. इस पैरेललोग्राम में क्या हो रहा है, EFGH आर द मिड पॉइंट्स. ओके, लेट अस प्लॉट दिस A B C D. ओके, सो E F G H. ओके, चार मिड पॉइंट्स दिख रहे हैं. Yes, sir. नाउ यू हैव टू शो दैट Yes, sir. एरिया ऑफ EFGH, ये EFGH को मान लीजिए हम ज्वाइन करते हैं. ओके, ज्वाइन किया. यस, so area of EFGH is equal to half of area of ABCD. That's what you need to prove. Clear? सर ये हो जाएगा. Hmm? हाँ सर. So how shall we do this? क्या कैसे करेंगे? Sir, if we join F and H. AC join करेंगे? हाँ सर. So let us try. Okay, so let us try to join AC. Okay, मान लीजिए AC को मैं ज्वाइन किया. ओके, नेक्स्ट what can we do after this? Again you have to Sir, think of getting parallel lines, एक कुछ triangles, कुछ parallelograms, so on. हाँ बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हैं? sir, if we draw FH, then will FH. FH, Good. then that line will be parallel to AB, and from there we बहुत can अच्छा है. tell that Good, good. these. So इस क्वेश्चन में AC ज्वाइन करने से बेटर है FH. FH ज्वाइन करना, और सर EG EG भी join ज्वाइन कर सकते हैं.
यस और नो? सर कोई एक ज्वाइन करना Yes, पड़ेगा sir. ना? सर अगर सो हम सीए ए सी को निकाल दूंगा मैं। Yes, sir. ओके, सो एक काम करता हूँ, ए सी को निकाल रहा हूँ। सो आई विल जॉइन विच FH पॉइंट्स? आई विल जॉइन FH FH और EG। FH. आपके हिसाब से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जस्ट ज्वाइन FH। सो व्हाट आर दी स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप क्या है? नाउ area of फर्स्ट जो GHS है is equal to FH एंड CDAB, ये तीनों पैरेलल तो प्रूफ करना पड़ेगा आपको। दैट इज नॉट गिवन टू यू, यस और नो? So what is the construction here? यस So it is the Construction is simply midpoint. join FH. Okay. So first proof का first part जो है, देखिए ये नहीं है कि ये प्रूव करना डिफिकल्ट है, बट आपको करना पड़ेगा, समझ में आ रहे? So first part of the proof is to show that FH is parallel to AB is parallel to CD. ये प्रूव करना पड़ेगा आपको, yes or no? So कैसे प्रूव करिएगा? यस वो तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सर क्योंकि मिड पॉइंट ये है दोनों मिड क्योंकि पॉइंट्स Sir, है। midpoint है तो So ये AH is दोनों equal to इक्वल है ना? DH. यस ये सर दोनों और इक्वल नीचे है वाला एंड ये भी दोनों इक्वल पैरेलल भी है, क्योंकि ओरिजिनल फिगर इज ए पैरेललोग्राम, यस और नो? Yes, sir. यस सर सो इन क्वाड्रिलेटरल FHDC, one pair of opposite sides are equal and also parallel. Hence, FHDC is a parallelogram, which implies this is parallel to this is parallel to this. Clear है? समझ आ रहे? वो आप लिखना पड़ेगा. That's what I am saying. Clear? In Yes, sir. quadrilateral FHDC, FC is equal to HD and FC is parallel to HD. Okay, and FC equal to HD क्यों है? Because FC is equal to AD by 2, HD is equal मिड to, पॉइंट sorry, FC is BC by 2 and AD by 2. Yes or no? यस सर Okay, hence Yes, sir. this is a parallelogram. एक बार parallelogram proof किया तो हो गया ना काम. Now this हाँ सर triangle and this parallelogram are on the same base and in between same parallels. So triangle का area, ये वाला triangle का area half of parallelogram का area. Similarly, नीचे वाला triangle का area will be half of सर एडिंग बोथ द the इक्वेशन other area. दोनों को add किया तो हमारा theorem जो है वो proof हो जाएगा. ऐसा ना? Yes, sir. यस सर आगे जा रहा हूँ. ठीक है सर I hope you सर can एक सेकेंड हाँ, I hope you can write the steps that I am saying. Yes or no? लिख Yes, सकते हैं sir. ना? These are Yes, जो very sir. easy. जो हम बोल रहे हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. यस सर Yes, sir. Next question. In figure, ABCD is a parallelogram. Okay, AE is parallel to DC and CF is parallel नहीं perpendicular. Okay, ये भी 90 degrees है, ये भी 90 degrees. Okay, AB is equal to 16. This is given as 16. AE is equal to 8. CF is equal to 10. AD आपको फाइंड करना है. Again easy question है ना ये? Yes, sir. Yes or no? हाँ सर Basically concept क्या है? Area of parallelogram is same whatever base and whatever height you take. Yes or no? सर 16 into 8 by So 10 area of parallelogram ABCD will be equal to एक तरीके से देखा तो AB into AE होना चाहिए. है सर नो? अगर AB को बेस लिया तो AE हाइट होगा. है सर नो? That should be same as AD into CF. यस सर AD को अगर बेस लिया तो
CF हाइट हो जाएगा, ऐसा नो, हाँ सर। which implies AB is 16 into 8 is equal to 10 into AD. So AD is equal to कितना होगा, 2 5 ज़र 2 4 ज़र 64/5 सेंटीमीटर, ऐसा नो। Yes, sir. अगेन ये इजी क्वेश्चन है, आगे जा सकते हैं, बट यस कॉन्सेप्ट सर। ये है So कि just a minute. पैरेललोग्राम का कोई भी बेस उसका करस्पॉन्डिंग हाइट, दूसरा बेस उसका करस्पॉन्डिंग हाइट मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर आना चाहिए, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज फिक्स्ड, ऐसा नो। Yes, sir. सर नेक्स्ट क्वेश्चन। जा सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दिस फिगर ABCD is a quadrilateral, okay, ABCD is a general quadrilateral, कुछ स्पेसिफिक कुछ स्पेशल quadrilateral नहीं है, जनरल quadrilateral, where BE is parallel to AC, ठीक है, एक quadrilateral ड्रॉ किया आपने पहला, इसके बाद जो भी डायगोनल AC है, whatever is the diagonal AC, इसका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया BE, okay, this is parallel to this, okay, and BE meets DC extended at E, DC को एक्सटेंड किया तो ओके, DC को एक्सटेंड किया तो E पे मीट कर रहा है, ओके। व्हाट यू नीड टू शो इज शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, कहाँ है ADE, ये वाला पूरा ट्रायंगल इज सेम एज एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया। बेसिकली इस क्वेश्चन में द इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व इज दिस इज पैरेलल टू दिस, क्लियर है। यस सर। सो एक स्टेप मैं लिख सकता हूं, आप ये बोलिए कौन सा ट्रायंगल्स का एरिया से इक्वल होगा। देखिए आपको दो पैरेलल लाइंस तो दे दिया, आर देयर एनी ट्रायंगल्स बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस विद सेम बेस। अब ये Yes, बोल sir. सकते हैं ना एरिया ऑफ ACB इज सेम एज एरिया ऑफ ACE, यस और नो। Yes, sir. एरिया ऑफ ACB इज सेम एज एरिया ऑफ ACE, यस और नो। एरिया ऑफ BEC is same as area of BEA, ये भी लिख सकता हूं ना मैं। अगर इस तरफ से देखा तो if I see from this side I'll get this result, if I see from this side I'll get this result, ऐसा ना। ठीक है, कौन सा यूज होगा वो बाद में देखेंगे हम, ओके। सो नेक्स्ट आपको जो शो करना है एरिया ऑफ quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD is made up of triangle ADC plus area of triangle ACB, yes or no। ABCD quadrilateral का एरिया जो है ये वाला एरिया, yes or no, this area plus Yes, this sir. area, okay। Yes, sir. What is area of triangle ADE? ADC plus What is AC. area of triangle ADE? ADE का जो एरिया है that is equal to area of triangle ADC plus area of triangle AC. ACE, yes or no। बट ये दोनों एरियास इक्वल है ना, these two triangles have equal areas, yes or no, and Yes, these sir. two are same, which implies area of ABCD is equal to area of triangle ADE, क्लियर है क्या नहीं। No, sir. सर ये समझ नहीं आया।
क्या समझ में नहीं आया? एक और बार करें? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, Yes, sir. ओके, फर्स्ट ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, ए सी एंड, Yes, sir. क्या चल रहा है, ए सी एंड बी पैरेलल है। सो ये दोनों रिजल्ट समझ में आया पहला? ये देखिए, फर्स्ट डिड यू अंडरस्टैंड दीज टू रिजल्ट्स? Yes, sir. अब देखिए क्या शो करना है आपको, व्हाट टू बी शोन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये दोनों सेम शो करना है आपको। ओके, Yes, sir. अब एडीई देखिए, अब मैं क्या करता हूं, आई नेम द एरियाज। ओके, आई नेम द एरियाज। सो ये फर्स्ट एरिया मान लीजिए, ओके, ये सेकंड एरिया है, ये थर्ड एरिया है, ये फोर्थ एरिया है, ये फिफ्थ एरिया है। ओके, क्लियर? Yes, sir. सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है, quadrilateral ABCD is the sum of which areas? Is the sum of which areas? 1, 2, 3. 1 plus 2 plus 3, yes or no? 3. Yes, sir. ये 1 क्या है? 1 is triangle ADC, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And ये 2 plus 3 क्या है, बोलिए? What is this 2 plus 3? ACB. Area of ACB. triangle ACB. Okay, Sir, समझ में आ ACB. रहा है? Yes, sir. What is area of triangle ADE? Triangle ADE में क्या क्या areas है, बोलिए? Triangle ADE. What are the areas that you have in triangle ADE? 1 1 plus plus 2 plus 4. 2 plus 2 4 है ना? plus 4. Yes, Yes, sir. 1 क्या है? ADC. ADC. एंड 2 plus 4 क्या है? ACE. ACE. ओके, क्लियर है? अब ये दोनों Yes, को sir. कंपेयर करिए, ADC ADC सेम है, एंड Yes, sir. ACB ACE सेम, तो प्रूव किया था ना हमने। सो दोनों Yes, sir. एरिया सेम हो गया, क्लियर है? सर हाँ। तो फिर एरिया नंबर 3 और एरिया नंबर 4 भी तब सेम हाँ, होगा? हाँ सेम होगा, अगर वो प्रूव करने के लिए दिया तो प्रूव कर सकते हैं आप। वैसे 3 एंड 4 भी सेम है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the diagonals AC BD of a quadrilateral ABCD intersect at O, then and separate the quadrilateral into 4 triangles of equal area, then show that the quadrilateral ABCD is a parallelogram. बोल रहा है कि एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मान लीजिए एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, ओके, मान लीजिए एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, लेट दिस बी ABCD. What is happening in this quadrilateral? The diagonals AC and BD, AC and BD diagonals draw कर लीजिए, okay? So let us draw the diagonals AC and BD. Okay, so A से C तक, B से D तक. So what is being asked? If the diagonals AC and BD divide this quadrilateral into 4 triangles of equal areas, 4 triangles of equal areas. Normally देखा तो if you take any quadrilateral, ये चारों एरियाज इक्वल होने का जरूरत नहीं है ना, आपको दिख रहा है ना, चारों एरियाज इक्वल नहीं लग रहे हैं, सर नो? यस सर। Yes, sir. बट बोल रहा है Yes, sir. कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये चारों एरियाज इक्वल है, तो यू हैव टू प्रूव दैट द quadrilateral is a parallelogram. समझ में आया?
इसमें कंस्ट्रक्शन लगेगा क्या? कैसे? सर ये तो फिगर रॉन्ग है ना? हाँ, ये तो फिगर रॉन्ग है, बट बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये चारों, मतलब पहले मुझे पता नहीं ना, मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल में अगर ये चारों एरियाज इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। दैट्स व्हाट यू नीड टू प्रूव। ठीक है, मैं पहला पैरेललोग्राम इसलिए ड्रॉ नहीं किया टू शो दैट दिस विल नॉट यूजुअली हैपन इन एनी क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? यस सर। तो कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल लिया तो ये चारों एरियाज इक्वल नहीं होते हैं, एंड गलती से चारों एरियाज इक्वल है तो आप ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम होना चाहिए, अदरवाइज द एरियाज कैन नॉट बी इक्वल। दैट्स व्हाट यू नीड टू प्रूव। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। सो आप देखेंगे कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, गिवन के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं? वो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? Sir, all four Sir, areas. triangles are ठीक है, equal. जस्ट All ए बी four सी डी इज ए triangles. क्वाड्रिलेटरल, और कुछ नहीं दिया। समझ में आ रहा Sir, area is equal. है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, लेट द Areas of डायगोनल्स, the triangle. देखिए लेट ए सी एंड बी डी मीट एट पी। ओके, मतलब ये पॉइंट को पी मानेंगे। क्लियर? सर यहाँ पे तो इंटरसेक्टर सर ओ दिया हुआ है। क्या है बेटा? सर ओ दिया हुआ है। ओ दिया हुआ है क्या? ओके गुड, सो लेट देम इंटरसेक्टेड ओ। ओके, अननेसेसरी Sir, इंटरप्ट कर दिया। AC and BD ना? क्या है बेटा? सर ए सी एंड बी Sir, डी। BD, वो BD. AC and BD ना? ए सी एंड बी डी, हाँ यस। सर आपने जो गिवन में लिखा है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ए सी एंड बी डी इंटरमीट एट ओ। ओके, and Yes, what sir. is given? Area of Yes. triangle ABO is equal to area of triangle BCO is equal to area of triangle CDO is equal to area of triangle ADO. ADO. okay, this is given. So फिर एक और बार मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार मैं पैरेललोग्राम जैसे ड्रॉ करता हूँ। ओके, लेट मी ड्रॉ द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, so let us take a parallelogram. Okay, so now we'll draw the diagonals. We'll draw the diagonals, first diagonal, second diagonal. Okay, Yes, sir. so A, B, C, D, and this point is O. Okay, यस सर। Yes sir. अब let us do some conclusions. ठीक है, फर्स्ट देखिए प्रूफ, ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAD। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल OCD एंड OAD, ये दोनों ट्रायंगल्स हैव देयर बेसिस along same line. yes or no? आज का जो थ्योरम है, आज Yes, sir. फर्स्ट थ्योरम जो है, have their basis along the same straight line. yes or no? यस सर। And have a common vertex. yes or no? Yes, यस sir. सर। Which implies area of triangle OCD divided by area of triangle OAD should be equal to OC by OA. yes or no? यस सर। Yes, sir. बट ये दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज तो सेम है ना, which implies OC by OA is equal to 1. yes or no? Yes, According to sir. the given Yes, thing, sir. this is same as this. इसका मतलब OC by OA कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मतलब है OC is equal to OA. yes or no? Yes sir. Yes, sir.
सो हम ये प्रूव किया कि ये OC और OA का लेंथ सेम है। मैं ये बोल सकता हूँ सिमिलरली it can be proved that OB is equal to OD, है सर नो? यस सर। मतलब जैसा जो ट्रायंगल्स लिया थोड़ा सा दूसरे तरीके से ट्रायंगल लिया तो OB इक्वल टू OD भी आ जाएगा, है सर नो? यस सर। इसका मतलब क्या है? which implies in the quadrilateral ABCD the diagonals are bisecting each other, yes or no? यस सर। यस diagonals सर। bisect हो रहा है ना? यस सर। which implies the diagonals are bisecting each other, yes or no? Yes, sir. यस सर। So if the diagonals bisect each other, that should be a parallelogram. ये last chapter में किया है ना? If diagonals bisect Yes, each other, sir. the quadrilateral is a Yes, parallelogram, sir. which implies ABCD is a parallelogram. Okay, clear or not? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। देखिए Yes, अगर sir. आगे जा सकता हूँ। यस सर। Sir, please wait. नोट कर लीजिए आराम सर से। 2 मिनट। फिर हो गया। सर डन। गुड। Done, 2 sir. मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, a minute, please. वेट। ओके। Yes, sir, done. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मीडियंस BE and CF of a triangle intersects at G. Prove that area of GBC is equal to the quadrilateral AFGE. ओके, बोल रहे कि एक ट्रायंगल है। ओके, फर्स्ट हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। So let us draw a triangle. Okay, so कोई भी एक ट्रायंगल है आपके पास। ओके, so इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है? What is happening in this triangle? Let this triangle be A, B, C. The medians BE and CF are drawn. Okay, so क्या क्या किया आपने? You're drawing मीडियन का मतलब क्या है? वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, सर नो? Midpoint. सो बी से लेके ई तक आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ओके, सर वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के बीच में। ओके, बी इज वन मीडियन, सी एफ इज अनदर मीडियन। ओके, क्लियर? यस सर। Yes, sir. So this is BE, this is CF. Clear? They are intersecting at the point G. जी। What you need to prove is area of GBC. ये वाला area, ठीक है? You have to prove that area of this GBC is equal to area of quadrilateral AFGE. AFGE ये वाला, समझ में आ रहा है? ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सेम प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? लेट अस सी। यहां तक समझ में आया? मतलब व्हाट यू नीड टू प्रूफ, टू बी प्रूव समझ में आया ना? हाँ सर। यस सर। तो एक बार Yes, फिर sir. डायग्राम और अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ओके,
ठीक है, फिर ड्रॉ कर रहा हूँ एक और बार डायग्राम। सो एक ट्रायंगल है आपके पास, ओके, कोई भी जनरल ट्रायंगल हो सकता है। इसके बाद आप मिड पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं ना, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, ये भी एक मिड पॉइंट है, ओके, दिस इज ए बी सी। नेक्स्ट अगेन यू आर ड्रॉइंग द मीडियंस BE and median CF, okay, clear? So they are meeting at a point D. No, कहाँ meet कर रहे हैं? They are meeting at a point G, okay? They are meeting at a point G, BE and CF. So नीचे जो triangle है, you have to show that the triangle area is equal to, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So you have to prove that the area of GBC is equal to area of the quadrilateral AFGE. Clear है? So कैसे करेंगे? How shall we do this? So we should draw line parallel to BC passing through Line A. parallel to BC which passes through A. which passes through A. A. क्या उससे कुछ फायदा होगा क्या? देखिए हम क्या कर सकते हैं, Sir, BEC is equal to half of triangle ABC. BC is Area. equal to, Sir, BEC का एरिया सर हाफ ऑफ ABC. हाँ सही है। देखिए मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली ACF सर ABC का हाफ होगा. सही है। एक आप काम कर सकते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं आप। लेट अस ट्राई टू गिव सम नेम्स टू द एरियाज, ओके। सो लेट दिस बी द फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ एरिया, सर नो। सो टू बी प्रूव्ड क्या है, देखिए हर बार वो एरिया का नाम लिखने से नंबरिंग दिया तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करना इजी होता है, ओके। सो फर्स्ट देखिए, टू बी प्रूव्ड जो है 2 is equal to 4 है, सर नो? यस सर 2 is equal to, टू बी प्रूव्ड क्या है, सेकंड एरिया इज इक्वल टू थर्ड एरिया, सर नो? Third area. यस सर. सो फर्स्ट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नो, ओके, ठीक है। नोन क्या है, देखिए ये वाला मीडियन है, BE is a median. So if you take a median, can you say that the median divides the triangle into two halves of equal area? Yes, sir. कौन सा theorem को यूज करके? So if you take any triangle, if you take the median, टू इक्वल एरिया ट्रायंगल. क्योंकि ये दोनों triangles का bases जो है along the same line and have a common vertex. So area Yes, का sir. रेशियो क्या होगा, bases का रेशियो, बट bases तो सेम है ना, क्योंकि AD is the median. So bases सेम है, hence the areas are same. Clear है? यस सर. Yes, sir. So मैं इतना बोल सकता हूँ 1 + 2, जो 1 + 2 is same as 3 + 4, ऐसा नो? 4. Yes, sir. एंड इस तरफ भी यूज कर सकता है ना ये, CF is also a median. So 1 + 3 is equal to 1 + 3 is equal to 2 + 4. 2 + 4. 2 + 4, okay. So एक से एक माइनस करता हूँ. Yes, sir. Let us subtract one from the other. Subtract किया तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा. So area 2 minus area 3 is equal to, ये दोनों subtract किया तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा. Area 3 minus area 2, yes or no? 3 minus 2. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So transposition किया तो 2 times second area
इज सेम एज 2 टाइम्स थर्ड एरिया. सो 2 2 कैंसिल किया तो क्या आ रहा है? सेकंड एरिया इज इक्वल टू थर्ड एरिया आ रहे हैं. समझ में आया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So effectively the answer is done. So ये यहाँ जो भी मैं दिखाया था, अब आपको क्या करना है? पैरेलली लिखना 1 है. का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, सब कुछ लिखना है. इतना ही है. You'll get the answer. Yes or no? Yes, sir. इजी लग रहा है ऐसा लिखना? अगर एरियाज को नंबरिंग किया तो आप पहले सोचना बहुत इजी हो जाएगा. इज इट क्लियर? सर स्कूल एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं? देखिए ये एग्जैक्टली स्कूल एग्जाम में ये आप रफ में करना. देखिए कोई भी अगर मान लीजिए नया क्वेश्चन है, आप क्या करिएगा? डायरेक्टली आंसर लिखिएगा या पहले सोचना पड़ेगा आपको? सोचना तो पड़ेगा ना. Yes, sir. Yes, जो sir. सोचेगा वो रफ में लिखिएगा या डायरेक्टली फेयर कर लिएगा एग्जाम में, अगर नया क्वेश्चन आया तो रफ में लिखिएगा ना. Sir, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन रफ. ये किया तो रफ में क्या है आपको, ऐसा किया तो जल्दी आंसर आ जाएगा, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है. एंड अभी फेयर में क्या करिएगा? सर यहाँ पे तो ऐड होगा ना, तो यहाँ पे 2 टाइम्स. नहीं नहीं, सब्ट्रैक्ट किया मैंने. सब्ट्रैक्ट भी कर सकता ना मैं, या सिर्फ एडिशन करना है मुझे? अरे नहीं सर. ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं ना. जो मुझे प्रूफ करना है उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो करना है मुझे, क्योंकि ऐड किया तो ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में. यस और नो? क्योंकि मेरा टू बी प्रूव्ड है 2 इज इक्वल टू 3. yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ये से समझ गए. सो वंस यू राइट दिस इन रफ, अब फेयर में क्या करना है? टू बी प्रूव्ड में 2 इक्वल टू 3 नहीं लिखना है. 2 का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल Triangle का नाम AFG, लिखना है. ट्रायंगल BGC. समझ में आया? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. एक बार Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन दिखाइएगा प्लीज. क्या है बेटा? एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिएगा, तब स्क्रीन बहुत ब्लर Previous था question लास्ट है क्या? पार्ट. ये वाला. Yes, sir. Yes, thank you. हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ. Yes, I'm following. यस सर. Yes, sir. ABCD is a parallelogram. X and Y are midpoints of BC and CD respectively. Show that area of AXY is 3/8 of the parallelogram ABCD. Okay. Let us try to draw a parallelogram. Okay. बोल रहे हैं एक parallelogram है के पास. The parallelogram is A, B, C, D. Okay. X and Y are midpoints of BC and CD. इसका मिड पॉइंट x है एंड CD का मिड पॉइंट y है. ओके. यू हैव टू शो दैट एरिया ऑफ AXY, मतलब ट्रायंगल AXY ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे. AXY. ठीक है, ट्रायंगल दिख रहा है आपको? Yes, you have to sir. show Yes, sir. that area of this triangle is 3/8 of the triangle ABCD. Clear है? So ये x है, बाहर लिख रहा हूँ. ठीक है. So मिड पॉइंट है, इसका मतलब this is equal to this and this is equal to this. Okay. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So again इस क्वेश्चन में भी let us try to create some let us try to give some numbering to the areas. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, सोचने Yes, sir. का Okay, प्रोसेस sir. जो है आपका इजी हो जाएगा. फर्स्ट एक डायगोनल AC तो ड्रॉ करूंगा मैं, शायद AC का जरूरत पड़ेगा ना. Yes or no?
I'll draw AC, okay? अगर जरूरत पड़ा तो अच्छा है, नहीं तो देखते हैं, ठीक है? AC को ज्वाइन कर रहा हूँ, okay? Clear? So let us say that the point of intersection Z करें, point of intersection, okay? So now let us name the areas, okay? First area, second area, third area, fourth area, fifth area, sixth area. There are 6 areas, yes? Yes, What is sir. to be proved? Yes, sir. To be proved क्या है? 2 plus 3, yes or no? 2 plus 3 is 3/8 of the whole. 2 plus 3 is equal to 3 by 8ths of total 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, yes or no? हाँ? Yes, sir. ये प्रूव करना है, सही है? अब हम हमारा कंक्लूजन है, जो कंक्लूड कर सकते हैं, विल लेट अस ट्राई टू कंक्लूड थिंग्स. सो फर्स्ट आपको क्या क्या एरियाज इक्वल है, फर्स्ट देखिए. कैन आई राइट 1 इज सेम एज 2 plus 6, yes or no? क्योंकि आप ट्रायंगल ACD लिया तो इफ यू टेक ट्रायंगल ACD, AY विल बी द मीडियन, yes or no? समझ में आ रहे? अगर ACD sir. वाला ट्रायंगल लिया तो बड़ा वाला आधा पैरेललोग्राम का हाफ, AY विल बी द मीडियन, yes or no? So 1 is equal to 2 plus 6, क्लियर है? नेक्स्ट इस तरफ क्या बोल सकते हैं? 4 is equal to 3 plus 5, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. इसके बाद और क्या कर सकते हैं? What can you do? What else can you do? और कुछ conclusions? Six is equal to 5. 6 is equal to 5 बोल सकता है क्या? 5. क्यों ऐसा, मतलब कुछ पर्टिकुलर रीजन है? Any particular reason? Cx is equal to Cy, Cz is equal to Cz common, and x देखिए Cz Cx is equal to Cy नहीं है. and Cy is equal. Cx is equal to Cy नहीं है, क्योंकि Cx जो है छोटा साइड का हाफ है, Cy जो है वो बड़ा साइड का हाफ है, yes or no? Yes, sorry. क्लियर है? से Yes, दोनों sir. ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्लियर? Yes, sir. और सोचिए 3/8 तक लेके जाना पड़ेगा. देखिए एक काम करेंगे, लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग. ये 1 is equal to 2 plus 6 है ना, 4 is equal to 3 plus 5 है ना, इसमें पुट करके देखेंगे क्या होगा. ओके, सो 2 plus 3 times 8 is equal to 3 times 1 के प्लेस में 2 plus 6. सो 2 बार 2 2 बार 6 हुआ था ना, 2 बार 3 2 बार 5 है, yes or no? Yes, sir. So 1 and 2 plus 6 is equal to 3 plus 5 आ जाएगा. 6 is equal to Sir, 2 plus 6 is equal to 3 plus 5. 2 plus 6 is equal to 3 plus 5. वो भी सही है, yes or no? क्योंकि Yes, 1 sir. plus 2 plus 6 is same as, yes or no? 3 plus 4 plus 5. 1 plus 2 plus 6 is same as
3 plus 3 plus 4 plus 4 plus 5. 5, yes or no? So basically 2 Yes. plus 6 is same as 3 plus 5, okay, क्योंकि 5. 1 is equal to 4 है. सो अगर 1 के प्लेस में 2 plus 6 किया है, 2 plus 6, 2 और 6 निकाल के 1 कर सकता हूँ. सो 2 times फर्स्ट एरिया, 3 और 5 निकाल के 2 times 4, okay, is equal to 6 times 1 plus 4, okay. Yes, sir. सो और काम करेंगे, आज का टाइम हो गया, ओके. आप ये ट्राई करिए, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी क्वेश्चंस, ओके. Okay, sir. Okay, sir. सो आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. Thank you, sir. Thank And you, bye, sir. sir. आगे Bye, क्लास में sir. कंटिन्यू Okay, sir. करेंगे, ओके. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you and bye.